براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے پھر سے آج یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہوگا، کیا عیسیٰ مسیح کی پیروی شرک ہے؟ ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، کھلی ہوں گی۔ آپ اسکائپ کے ذریعہ سے، ٹیلی فون کے ذریعہ سے، SMS کے ذریعہ سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ شریک ہونا چاہیں تو آپ سب کو پوری دنیا سے دعوت ہے۔ خداوند کا کلام روشنی ہے، شفا ہے، زندگی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ اب چونکہ آج کا موضوع عیسیٰ مسیح کی پیروی شرک ہے، میں ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے ہمارے جو خاص طور پر مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی نظر یہ حدیث کروں گا اور پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ پروگرام کے آغاز میں ہی ضروری ہے اس پر غور کیا جائے۔ یہ کتاب ہے راہ عمل، مولانا جلیل حسن ندوی کی یہ کتاب ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ ہے صفحہ نمبر 190، اور یہاں پر جو حدیث ہے وہ میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں۔ جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں۔ قول ہم دیکھیں گے اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، ان کا فرمان۔ یہاں پر لکھا ہے، خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور جب لوگوں کی طرف رخ پھیرا تو بیٹھے رہنے کی بجائے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے اور 3 بار فرمایا، غور کیجئے گا، 3 بار فرمایا، جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ پھر آپ نے درج آیات کی تلاوت فرمائی، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، ایک ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں پر نیچے مولانا نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ جو لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں، غور سے سنیے، جھوٹ کہنے کے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہر جگہ برا ہے، چاہے عدالت کے اندر حاکم کے سامنے بولا جائے، چاہے کسی دوسری جگہ۔ تو یہاں پر مولانا نے لفظ کا ترجمہ بیان فرمایا، جھوٹ کہنے کے ہیں، جھوٹ بولنے کے ہیں، چاہے عدالت کے اندر، چاہے کسی دوسری جگہ پر۔ اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، دیکھیے جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، لیکن مسلمانوں کی نگاہ میں اب یہ گناہ نہیں رہا بلکہ فن بن گیا ہے معاف کیجیے گا، اور ان کے درمیان وہ لوگ احمق سمجھے جاتے ہیں جو عدالت میں اپنے ایمان کے دباؤ سے سچی گواہی دینے کی ہمت کر بیٹھتے ہیں۔ جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں۔ اس لفظ کا مطلب ہے جھوٹ کہنے اور جھوٹ بولنا۔ اسلام کی جلیل القدر ہستی، ان کا بیان، جھوٹ بولنا اور شرک برابر کے گناہ ہیں۔ تو اب پروگرام کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے تجزیہ کرنا ہوگا ہم سب کو، اگر جھوٹ بولا گیا ہے کہیں بھی، کسی بھی جگہ پر، عدالت یا عدالت سے باہر، تو یہ شرک کے گناہ کے برابر ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کی عدالت کریں، دوسروں پر شرک کا الزام لگائیں، ضرور ہے اس حدیث کی روشنی میں پہلے ہم اپنی بات کریں، کیا ہم سے تو یہ گناہ سرزد نہیں ہو گیا؟ اب باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقائد کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی اکثر غور کیا کریں، چونکہ اکثر ہم تعلیمات کی بجائے جو رسومات ہیں یا فرائض ہیں ان کی بات کرتے ہیں، لیکن تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔
एक बात, जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा इसके शायद हमें और भी कुछ हिस्से करने पड़ेंगे, तो ये याद रखिए, इस्लामी तालीम, मसीही तालीम और दीगर तालीमात जो मज़ाहब अल हामी हैं, वहाँ पर यह है कि हर शख्स को यौम हिसाब खुदा के सामने अपने अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। शख्सी जवाबदही होगी। ये कौमी जवाबदही नहीं है, ख़ानदानी नहीं है, बतौर उम्मत नहीं है। हर शख्स को जो अमाल उसने किए हैं अपना अपना हिसाब इस्लामी तालीम के मुताबिक देना पड़ेगा। अगर मसीही तालीम में जाएं, अगर आप सूरह अल असर देखते हैं कुरान में, और दीगर सूरतें भी हैं, हवाला जात दे सकता हूं। अगर बाइबल में आप देखते हैं, मुकाशिफा की किताब है, और उसमें अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा हर शख्स की जवाबदही है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई नबी या कोई पैगंबर या कोई पीर या कोई औलिया में से, बुजुर्गों में से या करीब तरीन रिश्तेदारों में से आ जाएगा और वो आपके अमाल में अपने नेक अमाल डाल सकता है या आप उसको नेक अमाल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों ना अपनी अपनी ज़ात पर निगाह की जाए। जब हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ पहलुओं से हम जायज़ा लेंगे। अब इस्लाम के मुताबिक किसी बात को सच्चा जानने के लिए सूरह अल-निसा को अगर आप देखें, वहाँ पर लिखा है कि 2 गवाह होने चाहिए और बाज़ के लिए 4 गवाहों की तालीम है। तो अगर कोई शख्स 4 कुतुब इल्हामी मानता है या 2 मानता है, तो ज़रूर है अपनी अक्ल या शऊर की बात नहीं या किसी और से सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि कुतुब की जो तालीम है उसके लिए ज़रूरी है 2 गवाहियां हों या 4 गवाह हों, तो फिर उस बात को दुरुस्त माना जाए, तस्लीम किया जाए। अब इसके साथ साथ जो तफसीर का तरीका है उसमें से सिर्फ चंद बातें कि किसी भी तालीम को समझने के लिए, किसी मौजू को समझने के लिए ज़रूरी है कि जिस किताब में से आप जानना चाहते हैं उसकी अंदरूनी शहादतें, उसके अंदर की शहादतें क्या कह रही हैं, फिर बैरूनी शहादतों की बात की जाती है। तो पहली जो शर्त है इल्मुल तफसीर में वो ये है कि कोई मौजू है तो उसके बारे में आप जो अंदरूनी शहादतें उस किताब की हैं उनको देखिए, और उनको देखने के लिए भी ज़रूरी अहम बातें ये हैं, माफ़ कीजिएगा, कि आप सियाक़ो सबाक़ को देखें और उस मौजू को दीगर आयात की रोशनी में जो पूरी किताब में उस मौजू पर बात की गई है मुख्तलिफ पहलुओं से उसको देखा जाए। और जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात अक़दस की बात करते हैं तो 3 मज़ाहब में उनकी ज़ात के ताल्लुक से तालीम पाई जाती है, यहूदी, मसीहत और फिर इस्लाम। अब इस्लाम की जब बात आती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो ज़रिया सबसे मोतबर है, मुस्तनिद है, बाकी भी ज़राए हैं, लेकिन कहा जाता है कि कुरान सबसे मुस्तनद ज़रिया है किसी भी मौजू पर जिसका बयान हुआ है उसको सीखने का। तो हम कुरान में से ही देखेंगे कि क्या जब खुदावंद यीशु अल मसीह के ताल्लुक से तालीम बयान की गई है तो अंदरूनी शहादतें कुरान की क्या कहती हैं। अब इसके लिए यहाँ पर एक अहम बात ख़ास तौर पर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, आप तारीख़ इब्ने खल्दून का मुतालिया ज़रूर कीजिए। दीगर तारीख़ की कुतुब भी हैं। अगर आप तारीख़ की कुतुब का मुतालिया करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा माफ़ कीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें वक्त के साथ साथ मज़ाहब में शामिल होती गईं और किस तरह से तब्दील होती गईं और किस तरह से मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ बातों को बयान करते रहे। तो कुरान की जब तफसीर की बात आएगी तो 2 तरह से तफसीर उलमा बयान करते हैं। एक को मुख्तसर तफसीर कहा जाता है, जो आप गहराई में नहीं जाते लेकिन जो मतलब होता है या जो बयान किया गया है
उसको सतही तौर पर समझते हैं। दूसरा जो हिस्सा है तफसीर का वो है गहरे तौर पर, जामे तौर पर जानना, मुख्तलिफ उलमा की तफसीर को देखना, उन्होंने क्या बयान किया है, अल्फाज की जांच करना, परखना, और फिर तस्वीर आप पर रोशन हो जाती है। कोशिश होगी कि कुरान की अंदरूनी शहादतों से आज बात की जाए। तो मेरे साथ एक बहुत ही उर्दू ज़ुबान के जय्यद उलमा में से एक जनाब मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब होंगे, और मैं मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाऊँगा। प्रोफेसर साहब, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपको मदद करने के लिए फिर से एक बार। जी, खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें मौके देता है। आपका शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं। ये मौजू बहुत हसास भी है और काबिल फ़िक्र भी है, और ज़रूरी है कि ज़ातुल मसीह पर बात की जाए। तो मैं यहाँ पर पहली बात, जो पहला सवाल रखना चाहता हूँ, स्लाइड दिखा दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पहला जो कुरान में हजूर मसीह की ज़ात के ताल्लुक से नाम आया है वो है अल मसीह। जी। अब इसके लिए सूरह अल इमरान है, सूरह निसा है, सूरह अल माइदा है, इसमें आप मसीह का नाम देख सकते हैं। फ़रोज़ुल लुगात में, जो कि मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन साहब की लुगत है, उसमें उन्होंने जब मसीह, ईसा और यीशु के नाम का बयान किया है, तो जब ईसा का तर्जमा करते हैं तो वो कहते हैं गुनाहों से बचाने वाला। आप देख सकते हैं फ़रोज़ुल लुगात में इसको। अब प्रोफेसर साहब, ये जो नाम है अल मसीह, मसाया, जी, ये सर ना तो मसीही तसव्वुर है और ना ही ये इस्लामी तसव्वुर है। ये यहूदियों का तसव्वुर है, और ये इस्लाम और मसीहत के आने से पहले भी पाया जाता था। अब बड़ी बात यह है कि जब कुरान ज़ातुल मसीह की बात करता है तो वो उन्हें मसीह के तौर पर मुतारफ करवाता है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि इसके पस मंज़र को देखा जाए कि लफ्ज़ मसीह जब पेश किया जाता है तो इसका जो माना और मतलब है, इसके पस मंज़र में यहूदी तसव्वुर क्या था, और जब फिर मसीहत में मुआफ़ कीजिएगा, और इस्लाम में ये तसव्वुर आया है, तो हम देखना चाहते हैं कि जब मुतारफ करवाया गया है मसीह, तो यहूदी क्या समझते थे, जब मसीहत में इसको देखा जाए तो कैसे समझते थे, और जब कुरान मसीह कह रहा है तो फिर वही बात है या बात कुछ बदल गई है? आपका वक्त है, इस पर बात कीजिए जनाब। जी, और ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि यहूदी हजरात जो थे, ये उनका एक दिन का ये ख्यालात भी नहीं था। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हजरत याकूब ने किया था, जो हजरत मसीह से कबल कोई 1800 साल पहले थे, और वो पेशन गोई करते हैं। और उसके ऊपर एक यहूदी आलिम है जिनका नाम है पिरकी अबोध, तो वो पैदाइश की किताब उसका 59 कोट करते हैं, और वो कहते हैं कि ये मसीहा कोई ऑर्डिनरी मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी कुदरत है जो खुदा से कम नहीं। तो वो इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं थियोफनी, यानी वो इंसान से बढ़कर है। और इस बात को साबित करने के लिए वो यासया रसूल का बाब 9 का आयत नंबर 6 को कोट करते हैं, जहां पे लिखा है कि हमारे लिए एक बच्चा दिया गया, एक बेटा दिया गया, और उसका नाम कादिर मुतलक खुदा है। तो वो कहते हैं पिरकी अबोध साहब कि ये जो मसीहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। दूसरा वो जो कोट करते हैं वो मसियानिक साम बोलते हैं, यानी जबूर आज है वो 45 का 6 और 7, और वहां पर लिखा है कि ए खुदावंद खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा, क्योंकि तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बुराई से नफरत की। और इस बात को नए अहदनामे का ऑथर कोट करता है, इब्रानियों का खत उसका 1 का 8 और 9 में, और कहता है कि खुदावंद जब अपने फरजंद यानी मसीह को लेकर के आते हैं तो कहता है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा। फिर वो कोट करते हैं एक और रेफरेंस, दानियल का किताब उसका 9 का 24 से लेके 27 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि उस मुकद्दस को मसा किया जाएगा।
तो देखिए पूरे दानियल के किताब में मुकद्दस जो नाम है वो कोई इंसान का नाम नहीं है। खास तौर से जब आप पढ़ेंगे दानियल की किताब बाब 3 16 से लेके 28 में, तो लिखा है कि सद्रक मेशक अबेदनगो जब ये लोग आग में डाल दिए गए थे तो सारे लोग ये समझते थे कि वो जल जाएंगे, लेकिन लिखा है कि वहां पर एक चौथा शख्स था जो उनके साथ चल रहा था। एंड यहूदी आलिम इसे कहते हैं कि ये खुदा का जो बेटा है ये मसीहा है, और ये मसीहा कोई मामूली इंसान नहीं। और दानियल उसका 9 का 24 से लेकर 27 में उसे कहा गया है मुकद्दस, यानी वो पाक तरीन, उसकी मसा होगी। तो पुराने अहदनामे में अगर आप पढ़ेंगे तो मसीहा से मुराद कोई मामूली इंसान नहीं है। और इसीलिए हजरत मसीह से जब आखिरी सवाल किया गया कि क्या तू खुदा का बेटा मसीह है, और आपने कहा कि जी हाँ, यानी मसीह ने कहा, तो उसने कहा कि अब हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। तो जनाब कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी है। तो हजरत मसीह की जो मसलूबियत का एक वजह था वो ये कि आपने अपने आप को मसीह साबित किया था, अपने आप को कबूल किया था। अब नए अहदनामे में हम आते हैं कि नए अहदनामे के जो स्कॉलर्स हैं या जो ऑथर्स हैं वो इसको कैसे कोट करते हैं। अब तो यहाँ मती पर की इंजील, प्रोफेसर साहब, जी जी मैं माफ़ी चाहते हुए आपको थोड़ा सा रोकूंगा। यहाँ पर ये बताइए, चूंकि नामों की बहुत अहमियत है, जी नाम बताते हैं कि जिस शख्सियत को भेजा गया है जी उनके नामों से उनकी आमद के मकसद का भी पता चलता है। तो ये जी बताइए, ये जो मसीह है जी इसका मतलब, जो मौलवी साहब ने बताया कि गुनाहों से बचाने वाला है, जी तो इसका नाम का जो मतलब है, यहूदी जब मसीह कहते हैं, मसीही जी जब मसीह कहते हैं, तो वो इस नाम से क्या मतलब लेते हैं? आपने तफसील बताई कि ये तसव्वुर था, लेकिन इस नाम का मतलब क्या है? उनके जहन में क्या आता है जब ये नाम लिया जाता है? क्या मतलब है इसका? जी, मैं आपको बता दूं कि ये लफ्ज पहली बार आता है जब हम पढ़ेंगे तौरेत शरीफ गिनती का किताब 13 का 8 और उसका 16 में। तो लिखा है कि हजरत मूसा ने 12 लोगों को उस देश का खबर लेने के लिए भेजा था, और उनमें से एक था होसे, नून का बेटा। एंड इब्रानी जुबान में होसे का मतलब है नजात देने वाला। लेकिन उन्होंने खुदा के इल्हाम से उस नाम के पहले, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रीफिस, याहुवे जोड़ दिया, और इसलिए उस नाम को यहोशू कहा गया, यानी यहोवा तुम्हें नजात देगा। और ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि खुदावन जब तक मदद नहीं करे, यहोशू अपने ताकत से इन लोगों को उस मुल्क तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद इस बात का तजुर्बा था। हजरत मूसा ने शुरुआत जरूर किया इजिप्ट में, लेकिन वो ये मुकम्मल नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसके नाम के आगे यहोवा जोड़ दिया। लेकिन जब पुराना अहदनामा ग्रीक में ट्रांसलेट हुआ बीसी 250 में, जिसे LXX बाइबल कहते हैं, सेप्टुएजिंट वर्जन, तो उन्होंने उसका नाम ईसुस रखा। और इसीलिए नया नियम जब लिखा गया तो उन्होंने एग्जैक्टली उस नाम को येसुस रखा। तो जब आप ग्रीक पढ़ेंगे तो ग्रीक में कहते हैं, एक है जिसे कहते हैं कंट्रास्टेड मार्क, यानी एक नाम जिसमें दो है। जैसे मैं कहूं असगर अली, तो आपको मालूम है असगर एक नाम है और अली दूसरा नाम है। और ये हिब्रू और ग्रीक का एक कानून है कि जब दो नामों को आप जोड़ेंगे तो उसके ऊपर कंट्रास्टेड मार्क डालेंगे आप, जिससे पता चलेगा कि ये नाम में दो नाम है। तो इसी को जब नए नियम के ऑथर मत्ती के इंजील 1 का 21 में जब कोट करते हैं, तो वहां पर एंजल बताता है कि ये यीशु तुम्हें एक बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को गुनाहों से बचाएगा। तो फरिश्ता खुद बताता है कि ये इब्रानी में जो यहोशू है, इसका मतलब है यहोवा जो गुनाहों से बचाएगा। फिर लूक 2 का 11 में फरिश्ते ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक बड़े खुशी की खबर सुनाता हूं, दाऊद के शहर में एक नजात दहिंदा, एक मुंजी पैदा हुआ है जो लोगों के गुनाहों से माफी देगा। तो यहाँ पे फरिश्ता फिर बताता है कि मसीह का मतलब है वो जो गुनाहों से बचाता है। अब यूहन्ना के इंजील 4 का 22 में खुदावंद मसीह खुद कहते हैं कि नजात यहूदियों में से है, लेकिन 4 का 42 में लिखा है, लोगों ने देख करके कहा कि ये मसीह सचमुच में दुनिया का नजात दहिंदा है, दुनिया का नजात दहिंदा है। चौथा, रसूलों के अमाल 5 का 31 में लिखा है
کہ تم نے اس بادشاہ، اس نجات دہندہ مسیح کو مارا جس کے ذریعے ہمیں گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ رسولوں کے اعمال 13:23 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارے نجات دہندہ ہے۔ افیسیوں 5:23 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارے نجات دہندہ ہے۔ فلپیوں 3:20 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارے نجات دہندہ ہے۔ دوسرا تیموتی 1:10 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ ہے۔ تیتس کا خط 1:3 اور 4 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ٹائٹس 2:10 اور 11 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارا خدا اور نجات دہندہ ہے۔ ٹائٹس 3:4 اور 7 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ دوسرا پترس 1:1 اور 11 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارے خدا اور نجات دہندہ ہے۔ دوسرا پترس 2:20 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارے خداوند ہے اور نجات دہندہ ہے۔ دوسرا پترس 3:18 یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، اڈونائی ہے اور نجات دہندہ ہے۔ پہلا یوحنا 4:14 میں یسوع مسیح ہمارے خداوند ہیں اور اس دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ تو ایسے ہم نے 16 آپ سے بتایا، لیکن کم سے کم 27 بار نیا نیم کے آتھر لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کا نام کا مطلب ہے وہ جو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور مسیح مجھے ایک منٹ اور کہنے دیجیے، مسیح خود اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 19:1 سے لے کے 10 میں، تو حضرت زکئی ایک تھے جو مسیح کی دیدار کرنا چاہتے تھے اور حضرت مسیح وہاں پر گئے، اور تب اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی کا گناہ کر کے کچھ لے لیا ہے ناجائز طریقے سے تو 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ اور مسیح اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں انسان کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو خداوند مسیح خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے لوگ یہ اسکالرز جانتے ہیں کہ مسیحا کوئی معمولی انسان نہیں۔ نیا نیم کے اسکالرز لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیحا کوئی معمولی انسان نہیں۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے جو حضرات ہیں اگر جو اس کے اوپر مطالعہ کرنا چاہیں گے تو میں بڑے حلیمی سے، بڑے نمرتا سے ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہودیوں کے اسکالرز لوگوں کا پڑھیے، مسیح کے بارے میں خیالات کیا ہے، نیا نیم کے اسکالرز کے بارے میں پڑھیے۔ یہی ایک موضوع ہے جو تمام اسکالرز ایگری ہیں کہ یسوع جو مسیحا ہے وہ خداوند نجات دہندہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب نے بات کھول دی۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر توریت انہیں بطور مسیح، زبور انہیں بطور مسیح، انجیل انہیں بطور مسیح پیش کرتی ہے اور مطلب ایک ہی ہے، آمد کا مقصد ایک ہے، اور مولوی فیروز جب فروز اللغات میں لفظ عیسیٰ کا مطلب لکھتے ہیں تو گناہوں سے بچانے والا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جناب بطور انہیں نجات دہندہ گناہوں سے بچانے والا قبول کرنا شرک ہے، تو دعوت ہے، کال کیجئے، حوالے آپ کو بتا دیے، سورہ ال عمران، سورہ نساء، سورہ المائدہ، بطور المسیح انہیں متعارف کروایا گیا ہے۔ اگر مسیح کا مطلب اور آمد کا مقصد پہلے زمانوں میں، گزرے ادوار میں ایک تھا، تو پھر سوچنے کی بات ہے، جب قرآن کی اندرونی شہادتیں یہ کہہ رہی ہیں، 3 حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے، مزید حوالہ جات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں، باتیں مختلف طرح سے ہیں یا ان کو سمجھنے کے اور بھی طریقے ہیں، ذرائع ہیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے لائیو شو ہوتا ہے پوری دنیا میں، آپ کو دعوت ہے، ٹیلی فون کیجئے، ای میل کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، ہمیں خوشی ہوگی بات کر کے۔ اگر مسیح کی پیروی توریت، زبور، انجیل میں لوگوں نے نجات دہندہ کے طور پر کی اور قرآن ان کو بطور مسیح پیش کرتا ہے، تو مسیح کی پیروی ثابت ہوا، شرک نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات ہم دیکھتے ہیں،
کہ यीशु अल मसीह इस्लामी अकीदा के मुताबिक जिंदा हैं, मसीही अकीदा के मुताबिक जिंदा है। सूरह मरियम पढ़ लीजिएगा, दीगर सूरतें भी इस ताल्लुक से हैं, रवायात भी हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तमाम अंबिया जो तशरीफ लाए, हम सब पूरी दुनिया में देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उनका यौम पैदाइश, यौम वफात लोग जोश व खरोश से मनाते हैं। फिर इस्लाम में बहुत से फ़िरके इस बात के कायल हैं, मानते हैं, तालीम देते हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। बेशुमार वीडियोस, लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर और दीगर ज़राए से मिल सकते हैं। इस्लामी तालीम के मुताबिक बहुत से मुबल्लिगीन जो हैं वो इस बात की तबलीग करते हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। अब कब्रों में ज़िंदा हैं ये तालीम है, लेकिन जब हम हुज़ूरुल मसीह की बात करते हैं, उनकी ज़ात अक़दस की बात करते हैं, हम उनकी पैदाइश की बात करते हैं, हम उनके अक़वाल की तालीमात की बात करते हैं, हम उनके इखलाक की बात करते हैं, और जब हम उनके मुर्दों में से जी उठने की बात करते हैं, तो ये वो बात है जो तारीख में जुदागाना नजर आती है। मसीह की कब्र खाली है। मसीही अकीदा नविश्तों के मुताबिक, पेशनगोइयों के मुताबिक जो ज़ातुल मसीह से मुतल्लका हैं, तौरेत, ज़बूर और अंजील में जब हम पढ़ते हैं, वो पेशनगोइयों के मुताबिक हमें नजर आते हैं जो अंबिया इकराम ने उनके बारे में की। और उनमें से ये भी पेशनगोई थी कि वो सलीब पर मरेंगे, अपनी जान देंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। और ये वो बात है तारीख में जो उन्हें तमाम बनीनो इंसान से जुदा करती है, और वो यकता नजर आते हैं जिनकी कब्र खाली है और वो जिंदा हैं। और अगर कब्रों में ये ईमान है कि अंबिया इकराम सुनते हैं, बात करते हैं, तो फिर जिसकी कब्र खाली है, जो जिंदा है, जब उसकी पैरवी की बात आएगी तो क्या उसकी पैरवी शिरक है? बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, हुज़ूरुल मसीह जिंदा हैं जी, तो क्या एक जिंदा शख्स की पैरवी जो पेशनगोइयों के मुताबिक इस दुनिया में आए, सलीब पर उन्होंने अपने आने के मकसद को मुकम्मल फरमाया, तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे और आज जिंदा हैं, इस्लामी हमारे बहन भाई मानते हैं, मसीही मानते हैं, क्या जिंदा शख्स की पैरवी शिरक है? जी, आपका वक्त है। जी, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें, पता नहीं ये हजरात ऐसी बातें क्यों कहते हैं जबकि कुरान इसके खिलाफ है। क्योंकि कुरान में जब आप पढ़ेंगे तो 3 का 55 और 61 का 14 में तो लिखा है कि जो मसीह की पैरवी करेंगे, खुदा कहता है कि मैं क़यामत के दिन तक उनके दुश्मनों पर गालिब रखूंगा। अब इसके रोशनी में जब हम डिस्कस करेंगे कि हजरत मसीह की पैरवी गुनाह कैसे बन जाता है, शिर्क कैसे बन जाता है, और इन हजरात के कहने के पीछे इनकी वजह क्या है, ये जो आलिम इस तरीके का। जी, बहुत शुक्रिया। ये नुक्ता हम उठाएंगे, आगे है, लेकिन मैं यहाँ से आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि कब्रों पर जाकर इंसानी जो पीर हैं और इसके अलावा दीगर असातिज़ा हैं, उनके हाथ पर बैत करना, उनके पैरोकार बनना, और अगर जिंदा मसीह, जिसको कुरान ने मसीह निजात दहिंदा मुतारफ करवाया है, मुर्दा जो कब्रों में हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ ये मैं कह रहा हूं, चूंकि मज़ार तो मौजूद हैं, मज़ारों पर उनकी तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है, तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है। और जब हम जिंदा की बात करते हैं और उनकी पैरवी शिरक है, इस ताल्लुक से ज़रा थोड़ी सी बात कीजिए। लोगों को काबिल कबूल है
کہ जो पीर हैं उनकी पैरवी, कि वो उनको नजात मगफरत दिलाएंगे, लेकिन जो मसीह जो गुनाहों से नजात देने वाला है, जिंदा है, जी उसकी पैरवी शिरक है। इस पर थोड़ा सा तबादला ख्याल कीजिए। जी, और एक इसके ऊपर एक किताब है जिसका नाम है फंडामेंटल तौहीद ऑफ इस्लाम, एंड वो ऑथर इस बात को बताता है कि पहले शिर्क है क्या। हम शिर्क को पहले डिफाइन करेंगे कि शिर्क है क्या, मुशरिकीन किसे कहते हैं। तो अब देखिए जनाब, अरब जो मुल्क था, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे ऑलरेडी 360 ऐसी बुतें मौजूद थी जिनकी लोग अलग अलग तरीके से इबादत करते थे। अगर उसके रोशनी में कोई ये कहे कि खुदा एक है और उसे छोड़ कोई और नहीं, तो वहां पे सीधा साधा ये मीनिंग ये था कि आप उस सच्चे खुदा को छोड़कर अगर किसी की इबादत करते हैं तो वो शिर्क है। लेकिन अगर आप नबियों के रोशनी में आएंगे, जो तमाम अंबिया कराम है, हजरत अब नूह से ले लीजिए, हजरत इब्राहिम हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत दाऊद हैं, और हजरत यर्मिया हैं, हजरत यासया हैं, ऐसे दर्जनों जो हैं जिनके सहीफे आज हमारे पास मौजूद है। तो उन्होंने खुदा के बारे में जो तसव्वुर दी वो ये कहा कि ये जो गैर मुल्क के लोग, यानी जो कनानी हैं, इजिप्ट के लोग हैं, ये बहुत सारी जो माबूदों को मानते हैं वो शिर्क है। लेकिन उन्होंने एक ऐसे खुदा की तसव्वुर पेश किया जो 3 शख्स में है और एक वो जातों और सिफात में है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उस खुदा को कहा कि उस खुदा की जब हम इबादत करते हैं, जैसे मैं हूं, मेरा लफ्ज है, आप हमसे अलग नहीं कर सकते हैं, मेरा रूह है, आप मुझसे अलग नहीं कर सकते हैं, और मैं खुद हूं। तो अगर मैं कहूं कि मैं खुद हूं तो मेरे अंदर ये तीनों बात मौजूद है। और जिस खुदा के बारे में बाइबल के अंबिया कराम ने जो जिक्र किया है वो ये कि वो एक ही खुदा है और उसकी रूह है और उसका कलाम है और वो एक खुदा है, और उस एक खुदा के मानने पर उन्होंने कभी भी मुशरिक का नाम नहीं दिया है। और इसका प्रूफ है, मैं कहूंगा कि आप पढ़िए यशायाह रसूल का किताब 48 का 10 से लेकर 17 में। तो वहां पर लिखा है कि 10 में लिखा है कि मतलब बोलने वाला खुदावंद कहता है कि मैं अपने नाम को जलाल कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने नाम को कभी मलून नहीं होने दूंगा। फिर वो कहता है कि मैं आखिर और अव्वल हूं। वो कहता है कि मेरे दाहिने हाथ ने आसमान और जमीन को बनाया। और फिर वो 16 में कहता है कि अब यहोवा खुदा ने मुझे भेज दिया, और 17 में वो कहता है कि मैं खुदा हूं। तो आप इस 5 बातों पे गौर रखिए। वहां पर वो कहता है कि मैं अपने नाम को मलून नहीं होने दूंगा, मैं आखिर और अव्वल हूं, मैंने आसमान जमीन को बनाया, अब मुझे यहोवा ने भेजा है और मैं यहोवा हूं। अब इसको बात करने वाले कौन है? एक यहूदी नबी हैं, और वो कहते हैं, और इसके ऊपर एक साइमन अल्ताफ है जो एक जूइश स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि तसलीसी खुदा की जो यकीदा है ये क्रिश्चियनों का नहीं है, ये बल्कि यहूदी यकीदा है। हजरत दाऊद अपने ज़बूर 110 का 1 में कहते हैं कि खुदाबंद ने मेरे खुदाबंद से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों के चौकी ना कर दूं। और मत्ती के इंजील 22 का 41 से लेकर 46 में मसीह इस बात का जिक्र करते हैं, और वो लोगों से पूछते हैं, खासतौर से आलिमों से, कि मेरे बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कौन हूं? और वो कहते हैं कि तू दाऊद का बेटा है। और वो कोट करते हैं ज़बूर 110 का 1, और वो कहते हैं कि दाऊद तो पाक रूह के हिदायत से कहा, अपने तरीके से नहीं, कि खुदाबंद ने मेरे खुदाबंद से कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, और वो पाक रूह के हिदायत से कहा। तो आप अगर केयरफुली पढ़ेंगे तो मरकुस के इंजील में भी इसको कोट किया गया है, मरकुस 12 का 28, 29, 35 से 38। तो खुदावंद मसीह कहते हैं मरकुस 12 का 28 में कि खुदा एक है। लेकिन वही मरकुस 4 आयत के बाद मरकुस 12 का 35 से 38 में वो कहते हैं कि वो एक खुदा 3 शख्सियत में है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दूस। तो जो नबी जो लोग हैं यरूशलेम के, उन्होंने एक ऐसी खुदा के ख्यालात को पेश किया है कि वो खुदा एक है अपने जातो सिफात में, और वो 3 शख्सियत में बटा है। ये आपको मिलेगा पैदाइश उसका 18 बाब में, पैदाइश 1 का 26 में, ये आपको मिलेगा यशायाह 48 का 1 से लेकर 17 में, ये मिलेगा ज़बूर 110 का 1 आयत में। इस बात को मती कोट करता है, मती 22 का 41 से 46, मरकुस कोट करता है 12 का 28 से लेकर 38 में। अब
उस खुदा के बारे में अरब के लोग क्या जानते थे? इन्हें कुछ भी इल्म नहीं था। और अब समझिए जनाब कि एक इंसान एक मुल्क में है जहां पर 360 ऑलरेडी माबूद हैं, और अगर उसके कानों में ये पड़े कि एक खुदा है जो 3 शख्स है, तो वो कहां तक समझ पाएगा इस बात को? तो मेरा सवाल ये है कि अगर हजरत मूसा सच्चे नबी हैं, हजरत यासया सच्चे नबी हैं, हजरत दाऊद सच्चे नबी हैं, तो इन तीनों ने एक ऐसे खुदा के तस्वर को पेश किया है जो एक अपने जातो सिफात में है और 3 शख्सियत तरीके से है। अब उस खुदा को जब नबियों ने शिर्क नहीं कहा, तो आप किस बुनियाद पे उसको शिर्क कहते हैं? ये अख्तियार आपको किसने दिया है? क्योंकि आप तो नबी नहीं हैं। आप सवाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप नबियों को झुठला नहीं सकते हैं। और ये तमाम नबी यहूदी थे। इन नबियों का मसीहत को इन्होंने देखा तक नहीं था, तो वो ख्यालात ये लोग क्यों पेश करेंगे? अब इसके रोशनी में जब हम आते हैं और इनसे कहते हैं कि शिर्क है क्या, तो अरब के नजर में वो 360 में से अगर किसी माबूद को मानते हैं तो वो शिर्क है। मसीहत और यहूदी नबियों के नजर में वो एक खुदा जिसको नबियों ने पेश किया है जो 3 शख्सियत में है, वो शिर्क नहीं है। अब बगैर इसको जाने समझे और बूझे अगर कोई कहे कि मसीह को मानना शिर्क है, तो मैं कहूंगा कि इस हजरत ने, इस जनाब ने ना तो नबियों के तालीम को इन्होंने पढ़ा है, ना ही उसके स्कॉलरशिप को पढ़ा है। और ये इनकी बात इसलिए है क्योंकि ये यरूशलेम से कोसों दूर हैं और इन्होंने उस हक को अभी तक देखा नहीं है, पहचाना नहीं है। साहब जी जनाब। ने बहुत खुलकर इस बात को बयान किया है। और जिंदा रहना, हुजूरुल मसीह ने फरमाया, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। और जब वो मुर्दों में से जी उठे जी तो उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। जी अब यहां पर अंबिया कराम की बात आपने की है, और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैरोकार खुदामंद यीशु अल मसीह की पैरवी करने वाले हैं। जी अब यहां पर बात बहुत वाज़ेह है कि जिंदा शख्स से बात की जा सकती है। जी और इस वक्त पूरी दुनिया में चाहे आप जी। मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बाइबल के मुताबिक यीशु अल मसीह जिंदा हैं और आज भी लोग उनके पैरोकार बन रहे हैं। एक जिंदा जी। शख्स से बात की जा सकती है। और अगर आप जिनकी तारीख़ पैदाइश है, तारीख़ वफात है, उनकी पैरवी में मगन हैं, उनकी पैरवी करते हैं, आप तमाम पैरोकारों का ज़ाती फैसला है, हर शख्स का ज़ाती फैसला है। जी लेकिन यीशु अल मसीह जिंदा हैं, इस्लामी अकीदा, मसीही अकीदा, और वो आज भी जो शख्स पूरी दुनिया में उनकी ज़ात से आशनाई के लिए उनको पुकारता है, वो अपनी ज़ात को आशिकारा करते हैं और बातों को खोल देते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस वक्त ख्वाब, रोया के ज़रिया से खुदामंद से मुतारफ हो रहे हैं। और आपके लिए जिंदा मसीह की मोहब्बत, नजात, शादमानी, इत्मीनान, हमेशा की जिंदगी का द्वार खुला हुआ है। चूंकि वो जिंदा हैं, मुर्दा नहीं हैं, इसलिए जिंदा की पैरवी करने के लिए अगर आप उनकी ज़ात से आशनाई चाहते हैं तो फैसला आपका है। अगली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैरवी शिरक नहीं है। यह है कि ईसा मसीह मुकर्रबीन में से हैं, माफ़ कीजिएगा, जो करीब तरीन है। सूरह अल इमरान उसकी 42 से 51 आयत अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो इस दुनिया में भी मुकर्रबीन में हैं और फिर अब तक वो मुकर्रबीन में हैं। इस वक्त भी वो खुदा, बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, वो खुदा के साथ हैं, तख्त पर बैठे हुए हैं और हमेशा तक रहेंगे। तो कुरान भी यही बात बता रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ वक्त के बाद उनको यह रुतबा मिलेगा,
या उनको ये इख्तियार मिलेगा कि किसी को वो अपने साथ आसमान पर रख सकें? तो प्रोफेसर साहब, वो मुकर्रबीन में से हैं, कब्र में जिंदा नहीं हैं, खुदा के साथ हैं और जो करीब तरीन हैं। इस बात को कैसे समझे? जो इस वक्त करीब तरीन है और अब तक रहेगा, क्या उसकी पैरवी शिरक हो सकती है? इस पर बात कीजिए। जी, और अब मुझे 2 मिनट वक्त दीजिए। जो आपने पहली बार बताया उसमें 2 बातें ऐड करना पड़ेगा कि हजरत मसीह जो जिंदा हैं, तो देखिए, एक, वो मरने से पहले 7 बार ये दावा कर चुके थे कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये दुनिया में एक यूनिक है, तमाम अंबिया कराम में ये यूनिक है। कोई ऐसा अंबिया कराम नहीं गुजरे थे जिन्होंने ये दावा किया। और वो ये दावा करते हैं मरकुस 8 का 31 में कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। मरकुस 9 का 31 में कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मरूंगा और जी उठूंगा। लूक 9 का 22 में यरूशलेम में जाऊंगा, मरूंगा और जी उठूंगा। मत्ती 16 का 21 से 24 में मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मरूंगा और जी उठूंगा। आपने पहले ही कोट किया है यूहन्ना 10 का 17 और 18 में। वो कहते हैं कि मेरा जान कोई हमसे ले नहीं सकता है, मुझे इसे देने का और फिर से लेने का अख्तियार है। यूहन्ना 2 का 19 से 21 में तुम इस हैकल मुझे गिरा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और फिर जब वो जी उठते हैं, उसके बाद वो आके बताते हैं, और लूक में लिखा है इसका 24 का 46 में कि जैसे मैंने तुमसे कहा था, ये लिखा है कि मसीहा मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और हजरत मसीह एक बात की दावत देते हैं हमें और आपको। वो कहते हैं यूहन्ना उसका 14 का 23 आयत में कि अगर कोई इंसान मुझसे मोहब्बत करता है तो वो मेरे हुक्मों को माने, और अगर जो मेरे हुक्मों को माने मैं खुद को उसके ऊपर जाहिर करूंगा। और मैंने मसीह को 6 बार देखा है, और पिछले बार जो मैंने देखा, पिछले साल अप्रैल में देखा, वो मैंने ख्वाब में नहीं, ऐसे ही 2 बजे दिन में मैंने देखा। हमारे साथ कुछ मसाइल थे, वो एक अलग बात है, हम बहुत मायूस थे, और हजरत मसीह आए और दिन में 2 बजे हमने बात किया। तो ये मेरा 6ठा बार मसीह का देखना था। तो जैसे मसीह ने कहा है वो आज भी जिंदा है। और मैं आपसे कहूंगा जनाब कि अगर आप ये समझते हैं कि मसीह को मानना शिर्क है, आप क्यों ना मसीह से पूछें। वो कोई मुर्दा नहीं है, वो सिर्फ किताबों के मोहताज नहीं है कि एक बार उनके लिए मंदर्ज हो गया और बस रह गया। नहीं, वो जिंदा हैं और वो दावत देते हैं। तो क्यों ना आप पहले अपने गुनाहों से माफी मांगे, हजरत मसीह के पास आए, उनसे दुआ करें, और वो अपने आप को आप पर जाहिर करने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं हम आपके सवाल पे कि क्या हजरत मसीह जो मुकर्रबीन है इसका मायने क्या है और हम इसको कैसे समझें। तो खास तौर से जब हम पढ़ते हैं इसका कुरान 3 का 45 में जो आपने कोट किया है, तो लिखा है कि उनका नाम ईसा मसीह होगा, वो इस दुनिया और आखिरत में सबसे बड़े एक मुकर्रबीन होंगे। अब इसका मायने क्या है कुरान में? अब कुरान आप पढ़ेंगे खास तौर से 49 उसका 13 में, तो लिखा है कि देखो, खुदा ने एक ही इंसान यानी आदम के जरिए तुम सबको बनाया कि तुम एक दूसरे को पहचानो, और तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा रास्तबाज, इज्जत वाला वो होगा जो सबसे बड़ा, वो एक तरीके से पाकीज़ा होगा, इज्जत वाला होगा। तो यहां पर एक तरह हम देखते हैं कि यस, हजरत मसीह मुकर्रबीन हैं, पाक हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुदा कहता है कि किस तरीके से वो पाक हैं, और अगर हैं तो कैसे। तो यहां पर लिखा है कि कुरान 49 का 13 में कि तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा इज्जतदार, सबसे बड़ा मुकर्रबीन, सबसे बड़ा परहेजगार, खुदा के नजरों में इज्जत के लायक वो होगा जो सबसे ज्यादा पाक है। और अब आइए हम देखते हैं कि कुरान के अंदर सबसे ज्यादा पाक कौन है। तो कुरान आपको मालूम है सूरह आल अराफ 7 का 19 से लेकर 22 में हजरत दाऊद के गुनाहों के बारे में जिक्र है कि उनसे जो खुदा ने मनाही किया था उन्होंने फल खा लिया। कुरान सूरह नूह 71 के 28 में हजरत नूह कहते हैं कि ए खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। और आपको मालूम होगा कैसा गुनाह था, खुदा ने अपने गजब में तमाम दुनिया को सैलाब से खत्म कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गुनाह कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं था, और खुदा छोटा मोटा गुनाह के लिए तमाम दुनिया को खत्म नहीं करेगा। कुरान 26 का 82, 6 का 76 से 78 में अब हजरत इब्राहिम के बारे में कहा गया कि उसने सूरज, चांद, सितारों की इबादत की। और आपको मालूम है कि इस्लाम के अंदर 2 किस्म के गुनाह हैं,
गुनाह कबीरा एंड गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा वो है कि अगर आप किसी और की इबादत करें और चाहे पल भर या एक दिन के लिए, हजरत इब्राहिम ने ऐसा किया है। फिर कुरान 28 का 16 में लिखा है कि हजरत मूसा ने एक मिस्री का कत्ल कर दिया। फिर कुरान इसका 28 का 24 से 25, और हम चाहेंगे कि आप पढ़िए हजरत तबारी की किताब। उसका तबारी की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ इसराइल में वहां पर किस तरीके से हजरत दाऊद, ये तबारी बताते हैं, मैं बाइबल कोट नहीं कर रहा हूं, हजरत तबारी बताते हैं कि कैसे यहाँ पर हजरत दाऊद ने एक औरत के साथ जिस्मानी शोबत की, जो एक गुनाह है, और उस गुनाह के सजा में खुदा ने मतलब उनसे नाराजगी भी किया और उनके घर में कई सारे परेशानियों को लेके खड़ा किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यस, यहाँ पे जो खासतौर से गुनाह है तो हजरत दाऊद भी एक तरीके से गुनहगार हैं। फिर कुरान उसी 38 का 35 में हजरत सुलेमान को कहा गया है और तबारी उसके बारे में लिख के बताता है कि किस किस्म के उन्होंने गुनाह किया था। फिर हम देखते हैं कुरान 37 का 139 से 47 में हजरत योना के बारे में कि वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करके वो उनसे जुदा हो गए थे। फिर कुरान 61 का 16 का 61 में लिखा है कि अगर खुदा इंसान को सजा देना तो दुनिया में एक बशर नहीं बचेगा, सबको वो हलाक कर देगा, जैसे उसने नूह के जमाने में किया। यानी हर बशर गुनहगार है। और ये एक रेफरेंस है, जस्ट मैं बोलूंगा और चाहूंगा कि जनाब आप पढ़िए इसके बारे में, क्योंकि हम किसी के शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहते हैं, जो इस्लाम के जलीलुल कद्र हस्तियों में से एक हैं, और वो है कुरान 37 का 19, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 319, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 407, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 408, 335, एंड सूरह फतह आयत 1 और 2, 40 का 55, और ऐसे कई सारे जगहों पर है। तो कोई ऐसा अंबिया कराम नहीं है जो गुनहगार नहीं है। अब बड़े अजीबो गरीब बात है प्रोफेसर साहब, कुरान जी प्रोफेसर साहब आप जारी रखिएगा, 1 मिनट आपसे मैं लूंगा। यहाँ पर मैं ये अर्ज कर दूं कि ये सारे हवाला जात कुरान और अहादीस के हैं जी। ये प्रोफेसर साहब की तहरीरें नहीं हैं या वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ बनाकर बात नहीं कर रहे। तो आप बराए मेहरबानी एक तालिब इल्म के तौर पर इन हवाला जात का मुतालिया कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब यहीं से फिर आप जारी रखिएगा। जी जी जी, लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, कहाँ से आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी डॉक्टर दानियाल, मैं नुमान दिलदार बात कर रहा हूँ, यूएसए टेक्सास से। जी बहुत शुक्रिया, बात कीजिए नुमान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी डॉक्टर दानियाल साहब, मैं तो सबसे पहले आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो भी आप बात बताते हैं उसके बाद आई थिंक सो कि कोई सवाल करने का इतने जरूरत नहीं करता कि आप पे कोई सवाल के, क्योंकि आप ऐसे जवाब ही दे देते हैं कि कोई सवाल की गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर जो अभी आप बात कर रहे थे यीशु मसीह अगर जिंदा है तो उसकी पैरवी क्यों शिरक है? तो अगर हम देखें इस्लाम को, तो इस्लाम के जो नबी है वो जिस नबी को जनाब मोहतरम मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये बात ना कीजिए। ये बात हम करने के लिए बैठे हुए, हमें पता है कैसे ये बात करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से कोई बात कर दें जो किसी भी तरह से किसी की शान के खिलाफ हो। बड़ी माफी चाहता हूँ आपसे, बड़ी माफी चाहता हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। तो वो जो कोट करते हैं हवाला यूहन्ना के इंजील का, जी जी बिल्कुल, वो जो उसके हवाले से यहाँ पे यीशु कहता है वो तुम्हारे साथ अब तक रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फिर वो ये क्यों कोट करते हैं? हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई थी, तो वो अब तक रहे, तो वो वाई दे यूज। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये जो दावा है रूहुल कुद्स होने का, आप उसकी बात कर रहे हैं। आज का मौजू थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये नुक्ता उठाया है कि जब रूह हक आएगा तो वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, और आप ये कह रहे हैं कि ये बात किसी इंसान से मंसूब नहीं की जा सकती। यही बात है आपकी, बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहें? हम शुक्रगुजार हैं, आपने कॉल किया है, कोई बात करना चाहते हैं और प्लीज़। बात में ये करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आपके मैसेजेस है कि सारे सवालों के जवाब आपने दिए और बहुत शुक्रिया आप। जी, हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। मेरी ये कोशिश होती है ज़ाती तौर पर कि दुआ की जाए, खुदा के रूह से मदद मांगी जाए, और हम तमाम इंसान जो पूरी दुनिया में हैं
खुदा की मोहब्बत के रंग में रंग जाएं और उसकी राय यह है कि हम बातों को दुरुस्त सम्मत में सीख सकें। बहुत शुक्रिया आपने नुमान भाई हमें टेलीफोन किया, दुआओं में याद रखिएगा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। प्रोफेसर साहब जी जनाब, बात हम जारी रखेंगे। आपने बहुत से अंबिया का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ कुरान जब बात करता है हजरत आदम की, तो वो हवाला भी अगर आप बता दें, आप सिर्फ हवाला बता दें ताकि जो हमारे मेहरबान अहबाब हैं, जो तहकीक और मुतालिया से दिलचस्पी रखते हैं, सीखने की लगन है, जज्बा है और खुदा की पहचान के लिए वो प्यासे और भूखे हैं ताकि वो बाबरकत जिंदगियां गुजार सकें। तो ये हवाला भी अगर लोग चाहें तो आप बाद में भी ले सकते हैं, अगर प्रोफेसर साहब आप देना चाहें तो जरूर दे दीजिए। जी, मैं अभी देता हूं आपको। ये मैंने कहा था कि सूरह एराफ 7 का 19 से लेके 22 में खुदा ने कहा था, ए आदम आप तमाम फलों को खा सकते हैं, लेकिन इसके बीच में जो है आप मत खाना। सूरह अल बकरा 2 का 30 से लेके 35 में इसी बात का दर्ज है। सूरह ताहा 20 का 115 से लेके 21 में सेम बातें दर्ज है। लेकिन हजरत आदम ने वो फल खाया, नाफरमानी की और खुदा ने उनको बाग अदन से निकाल दिया। फिर से मैं ये तमाम रेफरेंस को एक बार दोहरा दूं जरा। तो हमने कहा था हजरत नूह के गुनाह के बारे में कुरान सूरह नूह 71 के 28, हमने फरमाया था हजरत इब्राहिम के बारे में सूरह 26 82 और सूरह इनाम 6 का 76 से 78 में हमने कहा था हजरत मूसा का कत्ल के बारे में कि उन्होंने एक इजिप्शियंस का कत्ल किया, कुरान 28 का 16। हमने हजरत दाऊद और सुलेमान के बारे में कहा, जो तबारी बताते हैं वो है कुरान 38 का 24 25 और 35। हमने फरमाया था आपसे हजरत योना के बारे में कुरान 37 का 139 से 147। फिर हमने कहा था तमाम बशर, तमाम इंसान कुरान 16 का 61 में एंड मिस्कातुल मसाबी का पेज नंबर वॉल्यूम 3 पेज नंबर 360 में। अब इसके अलावा मैंने एक जलीलुल कद्र का नाम नहीं लिया और मैं चाहूंगा कि ये रेफरेंस आप नोट करें। ये है सूरह 47 का 19, 40 का 55, 48 का 1 और 2, सूरह निसा 4 का 106। और ये इस बात का कंफर्मेशन है एक तरीके से हदीस में, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 319, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 407, 408, 335 में। तो यहाँ पर उस जलील कद्र को भी कहा जाता है कि आप अपने गुनाहों से माफी मांगे। अब बड़े दिलचस्प की बात है, हजरत मसीह की जब बात आती है, कुरान 19 का 19 में तो लिखा है कि वो एक पाक बेटा है। फिर सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 71 में लिखा है कि शैतान ने तमाम इंसान को छुआ है, सिर्फ ईसा अल मसीह यानी मरियम के बेटे को नहीं छुआ है। फिर सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 236 में लिखा है कि क़यामत के दिन तमाम नबी अपने गुनाहों का जिक्र करेंगे लेकिन मसीह खामोश रहेंगे। फिर सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 671 में 41 में लिखा है कि शैतान ने हर बशर को छुआ लेकिन हजरत मसीह को नहीं छुआ। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, ये पॉइंट आप कैच कीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि ये कुरान 3 का 45 में लिखा है कि हजरत मसीह इस दुनिया और आखिरत मतलब क़यामत के दिन सबसे ज्यादा इज्जतदार होंगे, मुकर्रबीन है वो। और कुरान चैलेंज करता है कि कैसे। तो कुरान 49 का 13 में लिखा है कि खुदा ने एक ही इंसान आदम से सबको पैदा किया और तुम में सबसे बड़ा इज्जतदार कौन है? वो जो खुदा के नजरों में पाक है, वह जो रास्तबाज है। और कुरान में लिखा है कि तमाम अंबिया कराम और इंसान सबके सब गुनहगार हैं सिर्फ मसीह को छोड़ करके। तो अगर एक बात बताइए जनाब, मजहब के नजरिए में आप एक गुनहगार की पैरवी करेंगे या पाक की पैरवी करेंगे? एक मुर्दे की पैरवी करेंगे या जिंदे की पैरवी करेंगे? एक कातिल की पैरवी करेंगे या जिंदगी देने वाले की पैरवी करेंगे? एक जो शैतान के बस में है उसकी पैरवी करेंगे या जो शैतान उस छुड़ाता है उसकी पैरवी करेंगे? किसकी पैरवी करेंगे? रीजनेबली आप बताइए ना। उसकी पैरवी करेंगे जो नादान है, जाहिल है, या उसकी पैरवी करेंगे जो हर बात का इल्म रखता है? तो किसकी पैरवी करेंगे? अब मेरे समझ में नहीं आता है कि हजरत मसीह एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके पास तमाम वो इल्म है, आप सबसे ज्यादा पाक हैं, आप आज जिंदा हैं, और उनकी पैरवी करने से हम मुशरिक कैसे करार दिए जाते हैं? कैसे? अकल के नजरिए से ये कभी बात साबित नहीं हो पाती है कि ऐसे, बल्कि
हमें तो चाहिए कि हम सब सिर्फ उन्हीं की पैरवी करें और उन्हें छोड़ किसी के ना करें, क्योंकि कोई उस लायक है नहीं। और जो इंसान मर गया आप उसकी पैरवी कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया। जो बहुत इंसान शुक्रिया। जिंदा है और वो कह रहा कि मैं जाहिर हूंगा और हजारों पे जाहिर हुआ है, तो हम उसकी पैरवी क्यों नहीं करें? आखिर उसमें क्या कमी है जो हम उसकी पैरवी नहीं कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोफेसर साहब के साथ हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आप शरीक हुए। ये सारी तालीमी बातें हैं। इस वक्त हमने कुरान की आयत देखी थी, आल इमरान 45वीं आयत। यस्सु मसीह मुकर्रबीन में से हैं, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी। इसी प्रोग्राम का जब तीसरा हिस्सा पेश किया जाएगा, उसमें हम देखेंगे कुरान में सूरह अल माइदा में खुदा ईसा अल मसीह की पैरवी का हुक्म देता है। ये हवाला आप पढ़ लीजिएगा। खुदा का हुक्म है कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ। इस पर हम खुलकर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ये ईसा मसीह का अपना हुक्म है कि मेरी पैरवी करो। सूरह अल इमरान है और उसकी 50 आयत है। और फिर हम देखते हैं सूरह अल हरूफ है और उसकी 61 आयत है। इसके अलावा दीगर बातें भी हम गौर करेंगे। तीसरे हिस्से में प्रोफेसर साहब हमारे साथ शरीक होंगे। खुदा अपनी बातें क्यों हम तक पहुंचाता है? सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, सीखने वाली बात है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और लिखा है यूहन्ना की अंजील में, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया उन्होंने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया, खुदा की बादशाहत में कबूलियत बख्श दी, अपने इलाही और अबदी खानदान का हिस्सा बना लिया। हजूरुल मसीह के वसीला से खुदावंद के साथ इंसानों के मिलाप का दर खुला हुआ है। इसीलिए उन्होंने फरमाया था कि दरवाज़ा मैं हूँ, जो मेरे वसीला से बाप के पास आता है, जो कुछ मेरा है सब कुछ उसका है। उसने फरमाया था मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, जमीन पर 200 गुना। इससे मुराद ये है जमीन पर भी वो साथ रहेगा और आसमान पर बर्रे की ज़ियाफत में शरीक होंगे। उसके साथ हमेशा से हमेशा तक खुदाई जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे। उसकी राह हमारे सामने खुदा के फजल से, उसके करम से, उसके तरस से मुहैया कर दी गई है। फैसला हमारा है, हम कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूं आपका मेज़बान दानियाल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। शुक्रिया।